Hello students, today we will discuss about a new topic, that is history of seed technology. Since this topic is very lengthy, that's why I have divided this topic into three parts. So, firstly, you should know about seed technology. Seed technology. So what is seed technology? According to Gowon, 1973, defined seed technology as that discipline of study having to do with seed production, seed maintenance, seed quality and seed preservation. The branch of science which deals with the study of seed production, seed maintenance, seed quality and seed preservation. All that things makes seed technology. So what do you mean by seed production? Actually, seed production means the production of high quality seed. As we know, the high quality seed production is the basis of agriculture. Now, seed maintenance. Seed maintenance means that the type of seeds which are produced should be viable and vigor. Viable seeds means how much seeds are germinated. The germinated seeds are called as viable, and those seeds which are not germinated called as non-viable. And what is vigor? Actually, all those properties of the seed which determine the level of activity and performance of the seed is called as the vigor of the seed. Now, seed quality. Seed quality is same, that is seed production. In seed production, we produces the seeds of high quality. Both are same. And seed preservation, how to store our seeds. So all these parameters comes under the topic seed technology. According to Festritzer, 1975, defined seed technology as the method through which the genetical and physical characteristics of seeds could be improved. It involves such activities. First is variety development. The second one is evaluation and release. Third one is seed production. Fourth one is processing. Fifth one is storage, and the last one is certification. Genetical and physical characteristics of seeds include variety development, evaluation and release, seed production, processing, storage and certification. For the variety development के लिए सबसे पहले पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है. उसके बाद उसमें क्रॉस कराया जाता है. जो आपको डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसमें क्रॉस कराया जाता है. उसके बाद जो उससे सीड्स मिलते हैं उनको ग्रो कराया जाता है. ग्रो कराने के बाद कराया जाता
आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएट किया जाता है कि किस टाइप के सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इवेल्युएशन के लिए, इवेल्युएशन करने के बाद उस पर्टिकुलर सीड का रिलीज किया जाता है, रिलीज एज अ वेराइटी। तो रिलीज करने के लिए अलग से कमिटी बनी हुई है जिसे हम कहते हैं वेराइटी रिलीज कमिटी। वेराइटी रिलीज कमिटी, ये जो वेराइटी रिलीज कमिटी है ये भी दो प्रकार की होती है, SVRL और CVRL। SVRL is State Variety Release Committee and CVRL is Central Variety Release Committee। तो ये these are two types of Variety Release Committee। उसके बाद है देखिए seed production। Seed production is the basis of agriculture। हाई क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बेसिस होता है एग्रीकल्चर का। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जैसे क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद है ड्राइंग, सीड ट्रीटमेंट, क्लीनिंग, ड्राइंग, सीड ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, और पैकेजिंग के बाद आता है स्टोरेज, स्टोर करना, और उसके बाद आता है लास्ट में सर्टिफिकेशन। तो किसी भी क्रॉप के सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे सीड्स जो सर्टिफाइड होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि आपकी जो क्रॉप है वो कैसी होगी, सक्सेसफुल क्रॉप होगी, और उसका जो रिस्क का मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, रिस्क का जो मैनेजमेंट होगा एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है ये सर्टिफिकेशन। अगर सीड्स सर्टिफाइड हैं तो वो बताते हैं कि आपका क्रॉप क्या होगा, सक्सेसफुल होंगे, उसके जो सीड्स होंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, उसके जो सीड्स का मेंटेनेंस होगा वो वायबल होगा, विगरस होंगे, उनकी सीड क्वालिटी हाई क्वालिटी की होगी। और ये एक प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट टूल भी होते हैं, वो बताते हैं कि आपका जो क्रॉप है वो रिस्क में नहीं आएगा, इंश्योर करता है क्रॉप की क्वालिटी को। नाउ seed technology in India. In the early years of 20th century, due to efforts of agricultural research at research colleges and research stations, a few improved strains of cotton, wheat, maize, groundnut and sugarcane came into existence. The Department of Agriculture adopted two methods for distribution of seeds of these improved varieties. इन improved varieties के distribution के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने दो मेथड बताए। फर्स्ट मेथड ने seeds of improved varieties were multiplied at one location। जो भी improved varieties के seeds थे उनको मल्टीप्लाई किया गया एक ही लोकेशन में। उसके बाद they are distributed over a
लार्ज एरिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया लार्ज एरिया में, एंड रिजल्ट क्या हुआ उसका कि द एरिया अंडर लोकल वेराइटीज could be replaced by improved varieties. Seeds of improved varieties मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एक लार्जर एरिया में, डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो उससे हुआ क्या कि जो लोकल वेराइटीज थी वो रिप्लेस हो गई इम्प्रूव्ड वेराइटी से. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड. Now, after first method, we will discuss here the second method. Second method में क्या हुआ कि seeds were distributed in small packets to a maximum number of farmers. छोटे छोटे पैकेट बना दिए गए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स को दे दिया गया. एंड it was expected that the farmers would multiply these seeds. ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि फार्मर्स इन सीड्स को क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे, लगाएंगे. अब अगर ग्रो कराएंगे तो सीड स्प्रेड बढ़ना चाहिए. सीड स्प्रेड को देखने के लिए, इस मेथड को ट्राई करने के लिए बंगाल में जूट एंड पैडी के सीड्स डिस्ट्रीब्यूट कराए गए. Jute and paddy seeds are distributed, but it was found that this didn't increase the coverage of seed. पाया कि coverage of seeds क्या था, बहुत ही कम था. तो रिजल्ट क्या हुआ इसका? As a result, this practice, the second method, this practice was discontinued. इसको discontinue कर दिया गया और कंसंट्रेट किया गया फर्स्ट मेथड पर. ये बताया था हॉवर्ड ने 1928 में. तो to encourage the use of good quality seeds, further provisions for liberal loans were made. Liberal loans देने लगे. क्यों देने लगे? क्योंकि फार्मर्स क्या होते हैं, बहुत ही गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था. इस वजह से लिबरल लोन्स की व्यवस्था की गई. एंड these loans were granted for the purchase of good seeds. और पर्टिकुलरली कब? जब कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्रॉप क्या हो जाए, फेलियर हो जाए, तो उस समय बहुत ही आसानी से किसानों को लोन दिया जाता था, जिसकी वजह से दे परचेज गुड सीड्स. तो अब हुआ क्या कि इन सब डेवलपमेंट को देखते हुए
United Provinces, Government of United Provinces 1922 agreed to establish one seed store in each तहसील, हर तहसील में एक सीड स्टोर स्टैब्लिश किया जाए. Since then, the State Department of Agriculture has been steadily increasing the number of seed store. तभी से सीड स्टोर की संख्या क्या हो गई, बढ़ती गई. उसके बाद बात करते हैं रॉयल कमीशन की. तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर constituted in 1925 to examine, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया गया जो कि एग्जामिन करता था क्या क्या चीजें. देखिए, पहला, द इंट्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज, द इंट्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज. इंट्रोडक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, वहां पर वो वैरायटी नहीं पाई जाती थी, कहीं और से दूसरी वैरायटी को ला करके एस्टैब्लिश किया गया, या कहीं वाइडली कोई चीजें पाई जाती, कोई वैरायटी पाई जाती थी, उसको ला करके आपने किसी ऐसे एरिया में ग्रो कराया जहां पर पहले से वो वैरायटी नहीं पाई जाती थी. दिस इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन. तो रॉयल कमीशन जो बनाया गया उसका काम था एग्जामिन करना कि द इंट्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज, मतलब कि वेराइटीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, मतलब कि हर एरिया में हर प्रकार की वेराइटी पहुंच रही है कि नहीं. दूसरा काम इनका क्या था? स्प्रेड ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज. कितना स्प्रेड किया, कम किया, ज्यादा एरिया में कर गया कि नहीं. स्प्रेड, कितनी ज्यादा एरिया में इंप्रूव्ड वेराइटीज स्टैब्लिश हो गई. तीसरा काम कि प्रोग्रेस ऑफ सीड डिस्ट्रीब्यूशन. सीड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्रेस क्या है, किसानों को आसानी से सीड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो ये जो रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर का बनाया गया था, तो उन्होंने ये तीन काम उनके कंट्रोल में ये तीन काम थे. द इंट्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज, स्प्रेड ऑफ द इंप्रूव्ड वेराइटीज, और तीसरा प्रोग्रेस ऑफ द सीड डिस्ट्रीब्यूशन. सो आफ्टर रिव्यू बाय द रॉयल कमीशन, सेवरल कंक्लूजन्स वर मेड. क्या क्या कंक्लूजन आए जब रिव्यू किया गया? क्या किया गया? रिव्यू किया गया. जब रिव्यू किया गया तो पाया गया, कुछ कंक्लूजन्स आए. उसमें पहला कंक्लूजन था कि इंप्रूव्ड वेराइटीज के इवोल्यूशन के लिए क्रॉप बॉटनिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे. क्रॉप बॉटनिस्ट इन्वॉल्व इन द इवोल्यूशन ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज. दूसरा, the initial seed was multiplied on seed farms of agriculture department. जो agriculture department था, agriculture department में ही, उसी लोकेशन पर ही initial seed multiplication होता था. तीसरा, the agricultural department, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, वो दे परचेज सीड्स कहां से लेते थे? जो ग्रोअर्स होते थे उनसे ये सीड्स को क्या करते थे? परचेज करते थे प्रीमियम प्राइस पे परचेज करते थे. और उसके बाद फार्मर्स को दे देते थे कंसेशनल रेट्स में.
कंसेशनल रेट्स पे, कम दर पे फार्मर्स को दे देते हैं।